Hello friends, welcome back to Cavalier India Pune. I Vaishnavi Patil and today we are going to analyze the question paper of 2024-2 of English जिसमें हम लोग देखेंगे कि जो questions आए थे what would be the answer and you guys please keep on checking कि तुम्हारे आंसर कितने राइट है कितने रॉन्ग है and at the end how much marks you got so that you would get an idea कि कितना कट ऑफ जा सकता है कितना मेरिट जा सकता है. Okay, so let's begin without wasting any time. Each item in this section consists of a sentence with an underlined word followed by 4 words or group of words. Select the option that is opposite in meaning. अब opposite बोला है इन्होंने, right? क्या कहा है? Opposite in meaning to the underlined word and mark your response on the answer sheet accordingly. They are asking about antonyms. So one by one we'll be doing the antonyms. Okay. All human beings are fallible. When I am talking about fallible means they are not that good. जो इतने अच्छे नहीं होते हैं, okay, मतलब imperfect होते हैं. So they are asking about antonym. तो frail मतलब थोड़ा it's a synonym of fallible. Again, earring is also a synonym. Mortal is also a synonym. एक ही बच रहा है, perfect. ठीक है, so fallible का opposite रहेगा perfect. Clear? So the answer would be D. Second question is, his words were vague. अब vague क्या होता है? Vague means, what do you mean by vague? His words were vague. एक तो identical type रहता है कुछ तो, again this is a synonym. Obscure uncles is also a synonym of it. ठीक है? Imperceptible is also a synonym. इसका आंसर बनता है Charlie. Which is precise, okay. So second, his words were vague, uska vague ka antonym is precise. Clear? Next, she performed all her duties conscientiously. She performed all her duties conscientiously. मतलब उसने कैसे परफॉर्म किया? एकदम बोलते हैं ना, केयरफुली, बहुत अच्छे से उसने अपनी ड्यूटी परफॉर्म की. ठीक है, शी परफॉर्म ऑल हर ड्यूटीज कॉन्साइंशियसली मीन्स व्हाट, इन अ वेरी प्रिसाइज मैनर, बहुत अच्छे से परफॉर्म की उसने उसकी ड्यूटी. ओके, सो इसका एंटोनिम पूछा है तो एसिडियसली इज ऑल्सो वेल परफॉर्म, बहुत अच्छे से, वेल मेंटेन टाइप परफॉर्म करना. ओके, केयरलेसली वुड बी द आंसर. पेन्सटेकिंगली मतलब बहुत अच्छे से, कोई चूक ना होते हुए, बोलते ना पेन्सटेकिंगली शी इज गोइंग एंड वर्किंग ओवर देयर. सो स्क्रिपुलसली इज ऑल्सो एन सिनोनिम. तो ये सारे सिनोनिम हैं इनके. सो आंसर वुड बी बी. क्लियर? होप यू गाइज आर चेकिंग योर आंसर्स एट द सेम टाइम. चेक करते रहो, देखो कितना मार्क्स आ रहा है. प्लीज राइट डाउन द स्कोर in the comment section once you check it. Okay, these streaks are incidental to the words of a firefighter. These streaks are incidental to the words of a firefighter. Now what do you mean by incidental? ठीक है, incidental एक ट्रिक है. whenever you solve this kind of question of antonyms, देखो 3 ऑप्शन कभी भी एंटोनिम में सेम रहता है और एक ऑप्शन रहता है जो ऑपोजिट रहता है, तो एक जो बचा रहता है दैट वुड बी द आंसर. सो दिस इज माय ट्रिक. अगेन मैंने ऐसे, इवन आई यूज टू डू दिस काइंड ऑफ एलिमिनेशन मेथड बोलते हैं. दिस रिस्क आर इज इंसिडेंशियली टू द वर्ड ऑफ अ फायर फाइटर. तो बताइए क्या रहेगा? एसेंशियल इज द एंटोनिम. ठीक है, दिस रिस्क आर इंसिडेंशियल मैंने इंसिडेंट कॉज कर सकते हैं. ठीक है, इंसिडेंशियल टू द वर्ड्स ऑफ द फायर फाइटर. इंसिडेंशियल, तो उसका ऑपोजिट क्या रहेगा? एसेंशियल. ओके, एडवेंचरस, सेरेंडिपिटस, सब्सिडियरी, these are the synonyms. These 3 words are the synonyms. Okay, then next question. She has always been disdainful of poor people. She has always been disdainful for poor people. Now antonym for disdainful is reverential. Now what do you mean by reverential? बताइए, reverential मतलब क्या होगा?
she has always been disdainful of poor people. Of poor people. This is respectful. No, we are talking respectful. Clear? तो अभी ऑपोजिट पूछा है, दे आर आस्किंग अबाउट ऑपोजिट वर्ड. सो शी हैज़ ऑलवेज बीन डिसडेनफुल, मतलब एकदम बोलते हैं ना बहुत नफरत करना या फिर related to something negative. Okay, she has always been disdainful of poor people. So this word I have always said, dismal, and this word sounds something negativity in the sentence. So अगर ये disdainful आपका नफरत सा कुछ तो रहता है, ठीक है, नफरत टाइप. Clear? It would be nafrat type. So opposite would be reverent, which is respectful. So answer is alpha. Answer would be alpha. ये हो गया. Okay. इसका भी आंसर alpha. Next. In this section, there is a passage that has some blank spaces, each with 4 words or group of words. Select whichever word or group of words you consider to most appropriate for the blank space and indicate your response on the answer sheet accordingly. It's sheet. Most of our food comes from agriculture, so we tend to believe that it is dash of natural biota. This is not true. अच्छा ठीक है. First, whenever you solve this kind of blank spaces, what I insist people that please read all this para and afterwards उसके बाद ना आपको एक hint लग जाता है कि what kind of para it is, what it is actually trying to say, so that it would be easy for you all guys to fill that blank. Okay, so whenever this kind of ये class test की तरह ही होते हैं थोड़े बार, तो आपको क्या करना है कि you have to read the passage once and after that go and solve the answers. Okay, तो पहले हम will be reading and then we'll come back and solve the questions. Most of our food comes from agriculture, so we tend to believe that it is dash of natural biota. This is not true. In nature, dash plant and animal dash to the rigor of natural selection, only the fittest survive. Dash wild population have numerous traits for competitiveness, resistance to parasites, to adverse condition. Dash other aspect of vigor. In contrast, population's growth for many under the pampered condition of agriculture tends to lose their stride because they high producing plant dash lack resistance to drought is dash and the resistance to drought is ignored. Also, in the process of breeding plant for maximum production, all genetic variation is eliminated. So आपको कुछ तो लग रहा है कि plant के related है, right? They are talking something related plant and the generation और लास्ट में क्या दिया उन्होंने जेनेटिक वेरिएशन के बारे में भी थोड़ी बातें चल रही है. मीन्स इट इज़ रिलेटेड टू बायो यस. तो आपको एक पता चल रहा है कि इस प्लांट और इस प्लांट या फिर इस प्लांट या फिर एनिमल समथिंग रिलेटेड टू दैट दे आर टॉकिंग. नाउ विल फिल द ब्लैंक्स. ओके, अच्छा ये हो गया. ओके, this was this from 6 till 15 there are questions. ठीक है. Most of our food comes from agriculture, so we tend to believe that it is dash of natural biota. It is independent, it is dependent, it is relevant and it is consequent. ठीक है. तो बोलते हैं मोस्ट ऑफ आर फूड कम्स फ्रॉम एग्रीकल्चर. पूरा कहाँ से आता है अपना एग्रीकल्चर से. हाँ, मोस्ट प्रोबेबली इट कम्स फ्रॉम एग्रीकल्चर ओनली. ओके, सो वी टेंड्स टू बिलीव दैट इट इज़ डैश ऑफ नेचुरल बायोटा. हम ये कह सकते हैं कि ये नेचुरल बायोटा मीन्स व्हाट वी टेंड्स टू बिलीव दैट इट इज़ डैश ऑफ नेचुरल बायोटा. ये डिपेंडेंट रहेगा, इरेलीवेंट. ऑफकोर्स इट इज़ इंडिपेंडेंट मैन. एग्रीकल्चर किसी के ऊपर डिपेंड हो, एक रेनफॉल छोड़ा तो, बट वी कम्प्लीटली डिपेंड for food on agriculture, right? And agriculture is something which is independent, which cannot depend upon anything. कोई ऐसे
I'm not talking about nature, right? We are not talking about nature. It is an independent of natural biota. Clear? It is an independent of natural biota. This is not true. In nature, dash plants and animals. अब कहते हैं plants and animals, okay? Of natural biota, this is not true. In nature, dash plant and animals. अब plants and animals, they are talking about both plant और animal दोनों के बारे में बात कर रहे हैं, right? They are talking about both plants and animals, right? So both, of course, options are the, some and some plants and animals तो नहीं आएगा. Among, you can't write among for two things. Between होता है तो बात ठीक थी, ठीक है. Among किसके लिए आता है? For three things. Oh, more than two. More than two. ओके, अमंग किस लिए आता है? मोर देन टू के लिए आता है, ठीक है. तो ये तो नहीं होगा, द तो होना ही नहीं है. सो आंसर वुड बी बी. ओके, प्लांट एंड एनिमल डैश had been continuously subjected, will be continuously subjected, continuously subjected, are continuously subjected. Now we are talking plants and animals. Now plants और animals देख लीजिए, पहली बात तो यही से पता चल रहा है, had it will not come in past, they are not talking something about past, तो ये तो नहीं होगा. Next is will be continuously subjected, no. Will be not, again no. Continuously subjected, no. Are continuously subjected. Okay, now read the sentence. Sentence would be, this is not true. In nature, both plant and animals are continuously subjected to the rigorous of natural selection. Only the fittest survive. ये एक लॉ है fittest survive का, ठीक है. Only the fittest survive, only the fittest survive. ये कह रहा है कि are continuously बोलते ना, are continuously subjected, और वही बचेगा जो सर्वाइव कर सकता है. only the one person or species can survive which can fit in the environment. clear? तो consequently या फिर inadvertently या फिर although या फिर since. आगे सेंटेंस क्या कहेगा? Wild population have numerous tried for competitiveness, resistance to parasite. अब क्या कह रहा है? अब ये कह रहा है कि अब इसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या होगा? व्हाट वुड बी द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ दिस? दिट वुड बी कॉन्सिक्वेंटली, ठीक है. अब इसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या रहेगा? कॉन्सिक्वेंटली वाइल्ड पॉपुलेशन हैव न्यूमरस ट्राइड फॉर कॉम्पिटिटिवनेस, रेजिस्टेंस टू पैरासाइट डैश. अब ये विड्रॉल रहेगा, टॉलरेंस रहेगा, अडेप्टेबल रहेगा और कंप्लायंस रहेगा. क्या रहेगा? विड्रॉल तो हो नहीं सकता, अडेप्टेबल तो हो नहीं सकता, कंप्लायंस भी नहीं हो सकता. टॉलरेंस बोल रहे ना, इसमें अब जितना ज़्यादा तुम कोई एनिमल या फिर प्लांट टॉलरेट करेगा, टॉलरेंस करेगा या फिर टॉलरेट करेगा, दैट प्लांट और दैट एनिमल कैन ओनली द वन हु विल सर्वाइव, राइट. तो यहाँ पर फिटेस्ट ऑफ सर्वाइव कहाँ है, राइट. तो इसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या रहेगा? इसका कॉन्सिक्वेंसेस रहेगा जो इसको टॉलरेंस कर पा रहे हैं, जो इसको टॉलरेट कर पा रहे हैं, दैट स्पीशीज और दैट एनिमल और प्लांट कैन सर्वाइव. ओके, सो आंसर वुड बी टॉलरेंस, बी. ओके, नेक्स्ट. पहले क्या है? ओके, ओके फाइन. टॉलरेंस टू एडवर्स कंडीशन डैश, tolerance to adverse condition dash other aspect of vigor in contrast. okay, till here. अब कहते हैं कि tolerance, now read the white population have numerous tried for competitiveness, resistance to parasite, ठीक है, resistance to parasite, tolerance to adverse condition, और इसके बाद क्या है? and लिख देगा, and adverse to adverse condition and other aspect of vigor. okay, and other aspect of vigor. so answer would be A, alpha. next is other aspect of vigor. in contrast, population grown for many eras, epoch या period या फिर generation. अब हमने जब when we read complete clause, complete what we say, complete para, at that time we come to know they are talking something
अबाउट दी स्पीशीज़। और ये बोलते ना हर एक जनरेशन के हिसाब से जेनेटिक, एक लास्ट में मैंने वर्ड दिखाया था आपको, ठीक है। ऑन दैट बेसिस ये समझ में आता है कि दे आर टॉकिंग अबाउट सम टाइम पीरियड। अब यहाँ पर टाइम पीरियड तो इराज भी टाइम पीरियड है, इपोक भी टाइम पीरियड है, पीरियड खुद अपने में टाइम पीरियड है, लेकिन दे आर टॉकिंग स्पेसिफिकली अबाउट जनरेशन। ओके, सो आंसर वुड बी डेल्टा। Population grown for many generations under the pampered conditions of agriculture tends to lose this drive because they dash for production, because they had selected तो नहीं आएगा, because we are not talking in past, ठीक है। have selected, no, because they have selected, नहीं, because they are selected, answer would be Charlie, because they are selected, okay, selected for production, not resilience. For example, a high producing plant dash lacks resistance to drought is, but high producing plant that lacks, या फिर whichever, whom, whenever, whichever कैसे आएगा, नहीं आएगा, whom, no, not at all, it won't fit that, ठीक है। तो इसका आंसर क्या रहेगा, चार्ली, ठीक है। For production on, for example, a high producing plant that lack resistance to drought is heated, irrigated, showered, deserted। अब क्या रहेगा बताइए, heated रहेगा, irrigated रहेगा, showered रहेगा, या फिर deserted रहेगा? heated तो नहीं हो सकता, heated कैसे रहेगा? check the sentence। अब क्या कह रहा है, for example, a high producing plant that lack resistance to drought is showered, irrigated, heated, desert। irrigated होगा ना, irrigated, clear, irrigated, and the resistance to drought is ignored, ठीक है। तो इसका आंसर क्या रहेगा, बी। Also in the process of breeding plants for maximum production, all genetic variation, genetic variation मतलब इससे पता चल रहा है जनरेशन टू जनरेशन, क्लियर। वेरिएशन से पता चल रहा है कि अब आफ्टर मी वेरिएशन इज डिफरेंस, ओके, डिफरेंस कि भाई एक बहन है तो इन दोनों में कितना डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। या फिर वेरिएशन, सदियों से वेरिएशंस होती रहती है। माय फादर मदर का जो बोलते हैं ना, डॉटर एंड लाइक आई कम्प्लीटली, नॉट कम्प्लीटली, बट मेरे में कुछ वेरिएशंस हैं। हम, आई डोंट एग्जैक्टली लुक लाइक माई मॉम और माई फादर, ओके। तो थोड़ा वेरिएशन रहता है, थोड़ा चेंज रहता है, क्लियर। जेनेटिक वेरिएशन इज एलिमिनेटेड, क्लियर। Each of the following items features one part of sentence followed by alternatives. Complete the sentence by choosing the correct alternative, ठीक है। अब कह रहे हैं complete the sentence by choosing correct alternative। अब क्या कहना है इनको, see this time they haven't gave the spot, उन्होंने spot the error नहीं दिया इस बार, ठीक है। So we don't have spot the error, जहाँ से हमें 10 क्वेश्चन अपने आप आता है, clear, in which we have 10 questions, और उसमें तो है था नहीं। तो दिस इज समथिंग विच इज़ रिलेटेड लाइक अ स्पॉट द एरर। आपको ढूंढना है कि इसमें हाउ, व्हाट वुड बी द सेंटेंस, और उसको कैसे कंप्लीट करना है। एंड क्लियरली यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट काइंड ऑफ टेंस, व्हाट काइंड ऑफ वर्ड्स, व्हाट काइंड ऑफ सिंगुलर, प्लूरल, प्लूरैलिटी, सिंगुलैरिटी, व्हाट विल कम आफ्टर द सब्जेक्ट वर्ब, एंड बोलते ना सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट में कैसे होगा, क्या होगा। इन दिस वे यू हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चंस। ये CDS में लास्ट टाइम आया था। Even this is the trend that UPSC is changing the pattern now. Every year we can find that something new, something different is there. Sometimes it is hard, but this time it was quite easy. But then too, let's see what would be the merit. But now till the time we'll be seeing these questions. Okay. So यहाँ पर आपको complete करना है, complete the sentence. We have to complete the sentence. Okay. So Preeti suggests. See what is your first question? Preeti suggests that I asked to your advice, that I had asked your advice। अब had में तो नहीं आएगा because this sentence is not in past, तो ये तो चला गया, ठीक है। Preeti suggests that I asked to your advice, say bravo क्या, that I had asked your advice, no, that I can have asked your advice। ये तो grammatically wrong लग रहा है भाई, तो of course Charlie will not be the answer।
प्रीति सजेस्ट दैट आई आस्क योर एडवाइस, दैट आई आस्क योर एडवाइस, ठीक है, तो डेल्टा वुड बी द आंसर दैट आई आस्क टू योर एडवाइस। नहीं, आस्क के बाद कब मैंने बताया था कि टू लगेगा, आस्क के बाद कभी भी टू नहीं लगता। ओके, make sure that whenever you see this kind of words after as two is not put, clear? So the answer is delta. Next, we saw the older of all, older के बाद तो all नहीं लगता है भाई, तो फिर वो बनेगा भी नहीं, of course not. We saw the older of all monument in the city, older of all monument in the city. 9. We saw the old of all monuments in the city, we saw the oldest monument in the city. Old के बाद most probably all तो लगता नहीं है, और तीनों ऑप्शन में all है, so answer is only Charlie. Answer is Charlie. We saw the oldest monument in the city. Older, old इसके बाद most probably you are not supposed to use all, so all the three options consist what? All. और भाई तो फिर तीनों चले गए, बचा कुछ अपना वही है, that would be your answer, so answer is Charlie. Clear? Next question is, since you have been touring all day, you must be tired. You ought to be tired, you ought to have been tired, you could had been tired, you might. Since you have been touring all day, कि तुम सुबह से, या फिर since you have been touring all day, पूरा दिन आप टूर कर रहे हो, तो you must be tired, you should be tired. should मतलब थोड़ी, you should मतलब you ought to is somewhat should, ठीक है, you should be tired, क्यों ज़बरदस्ती है कि अगर हुई नहीं तो भी तो नहीं होना ही है करके, no it's not, so ब्रावो तो चला गया. You could had been tired, could had been, could के साथ had कब से लगने लग गया भाई, could और had का रिलेशन इज रॉन्ग, इट्स रॉन्ग, ठीक है, सो चार्ली भी चला गया. यू माइट नॉट बी टायर्ड, क्यों, अरे ऑफकोर्स शी इज टूरिंग फॉर ऑल फॉर कंप्लीट डे, एंड हाउ शी कांट बी टायर्ड, ठीक है, यू माइट नॉट बी टायर्ड तो ये नहीं आएगा, यू मस्ट बी टायर्ड. क्लियर? सो आंसर वुड बी अल्फा, answer would be alpha. Clear? Now 19th question is, his condition is serious but, now read all the four options. His condition is serious but, his condition is serious but it should be worse. His condition is serious but it should be worse, मतलब आप कह रहे हो कि उसकी कंडीशन सीरियस है, मतलब और बदतर होनी चाहिए, of course not, तो अल्फा तो चला गया. His condition is serious but it ought to be worse, it's again somehow same like alpha. ought to is somehow it sounds like should, ठीक है, sounds नहीं, हम कहते ही ये ought to जब आएगा तो we pronounce it as should. okay, so it should be worse, no, wrong again. His condition is serious but it could be serious, it could be worse, it had been going to worse, no, had been plus verb plus ing, okay, it's wrong. okay, his condition is serious but it could be worse, उसकी कंडीशन सीरियस है बट वो उससे भी बदतर या फिर उससे भी वर्स्ट हो सकती है, ठीक है, ये कहना है, तो फिर could is right, so answer would be Charlie, answer would be Charlie. clear? next question. अब next क्या कह रहा है, I hope the bus comes soon because we waited for half an hour. बोल रही I hope the bus comes soon because, मैं ऐसे चाह रही हूँ कि बस थोड़ी जल्दी आ जाए. I hope that bus comes soon. I hope that bus, मैं आशा करती हूँ कि बस थोड़ी जल्दी आए. I hope that the bus comes soon because, क्योंकि we waited for half an hour, हमने ऑलरेडी आधा घंटा वेट कर दिया है. We have been waiting, हम ऑलरेडी आधा घंटा वेट कर लिया, ऐसे थोड़ी होता है, ठीक है, क्योंकि हम ऑलरेडी आधा घंटा हम रुक चुके हैं, ठीक है, इसलिए मैं आशा करूँ कि बस जल्दी आ जाए, ठीक है, सो दैट वुड बी समहाउ राइट. ये तो नहीं होगा, वी हैव बीन वेटिंग फॉर हाफ एन आवर, या आई थिंक दिस इज, यस दिस इज द आंसर. आई होप द बस कम सून बिकॉज वी हैव बीन वेटिंग. नाउ कैन सी प्रेजेंट पार्टिसिपल का लग रहा है क्या, नहीं, परफेक्ट कंटिन्यूस का सेंटेंस है. इट इज़ कम्प्लीटली डिपेंड अपॉन टेंस, मैंने कहा था ना टेंस के रिलेटेड क्वेश्चन था करके. सी दिस क्वेश्चन,
I hope the bus comes soon because we waited for half an hour. We waited for half an hour तो नहीं, we have been waiting for half an hour. चार्ली का कहता है we waiting for half an hour. कब से ऐसा कोई टेंस ही नहीं बना है भाई, ये तो चला गया. We could have been waiting for half an hour. Could why could मतलब ऑलरेडी तुम कह रहे कि बस लेट है, राइट. अगेन एनालाइज द सेंटेंस व्हाट इट इज ट्राइंग टू से एंड चूज द ऑप्शंस अकॉर्डिंगली. क्लियर. सो वी कुड हैव बीन वेटिंग फॉर हाफ एन आवर, तो ये तो चला गया. तो आंसर एक ही बचे, ब्राउ. क्लियर. ये कौन सा टेंस है, हैव बीन वेटिंग. दिस इज प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस. ठीक है. उसमें रूल क्या रहता है, द रूल इज हैव प्लस बीन प्लस हैज और हैव, और हैज हैव प्लस बीन प्लस वर्ब प्लस आईएनजी. आई हैव डन विद दिस इन द क्लास. मैंने ये थाउजेंड्स टाइम आई हैव टोल्ड अबाउट दिस रूल. ठीक है, मैंने बहुत बार बता चुकी हूँ उसको. अच्छा चलो बताइए 20 में से कितने कितने किन जनों के राइट है, कितने राइट है, कितने रॉन्ग है. हाउ मेनी राइट आर देयर. इफ इट इज 20 आउट ऑफ 18 19 इट्स गुड मोर देन इनफ. ओके 20 में से 20 है तो भाई तुम्हें ट्रॉफी मिलनी चाहिए. ओके सो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. समवन हैज स्पिल्ड जूस ऑन द सोफा. हाँ, समवन शुड हैव. व्हाई, कंपल्सरी थोड़ी है जूस का ग्लास लो और गिरा दो. वाई, इट्स नॉट कंपल्सरी. ओके, समवन शुड हैव स्पिल्ड जूस ऑन द सोफा. नो, तो ये तो गया. समवन हैव स्पिल्ड जूस ऑन द सोफा. समवन हैव स्पिल्ड जूस ऑन सोफा मतलब हैव, समवन हैव, नो, नहीं. समवन हैव स्पिल्ड जूस ऑन द सोफा, नो. समवन वुड स्पिल्ड जूस ऑन द सोफा. वुड क्यों कंपल्सरी थोड़ी है कि नहीं, गिराया नहीं, कोई तो गिराएगा ही आकर. No, it's not compulsory. तो अल्फा इज राइट. ठीक है, सो आंसर यहाँ पर क्या है, अल्फा. ओके नेक्स्ट. What would you do if you found your lost toy? What would you do if you found your lost toy? ये कंडीशनल सेंटेंस है. ठीक है, आई हैव टॉट दिस इन द क्लास. मैंने बहुत बार पढ़ा चुकी हुई है कंडीशनल सेंटेंस. ठीक है, इफ जब हो तो मोस्ट प्रोबेबली आई हैव टेकन दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन इन द क्लास इन द ऑफलाइन लेक्चर्स. व्हाट वुड यू डू इफ यू फाउंड योर लॉस्ट टॉय. आप क्या करोगे जब आपका घुमा हुआ टॉय आपको मिल जाएगा. इफ और सेकंड क्या है, व्हाट इफ यू विल हैव फाउंड. व्हाट वुड यू डू इफ यू विल हैव फाउंड योर लॉस्ट टॉय. नो, विल क्यों, नहीं ये रॉन्ग है. व्हाट वुड यू डू इफ यू वुड फाउंड योर लॉस्ट टॉय, नहीं ये भी नहीं बन रहा है. What would you do if you have find your lost toy, ये तो नहीं बनेगा. तो आंसर वुड बी अल्फा. आंसर क्या आपका, अल्फा. ठीक है, अब अगेन ये तो मैं बोलती ना आज तक के जितने PYQ लिए ना मैंने क्लास यहाँ पर रुक के, आई थिंक उसमें मोस्ट प्रोबेबली हर साल दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन इज देयर. अगर मैं ये होती, अगर मैं वो होती, अगर मैं चांद होती, if I were a moon, if I were a bird, if I were an aeroplane. तो this kind of questions every year it is there. ठीक है, तो मुझे तो लगता है कि आप पेपर ऐसे चिपका लो ब्रेन के अंदर, because this kind of questions are there in your paper every year. Clear? So if I were you, I shouldn't buy that car. Why? Shouldn't क्यों आएगा, wrong. If I were you, I wouldn't buy that car. नहीं, अगर वर है तो फिर आगे भी तो वर ही आएगा, तो वर ढूंढो. इफ आई वर यू आई वरंट बाय दैट कार. क्लियर. सो आंसर वुड बी सी. इजी, राइट. अब बताइए ये राइट. अब किसने रॉन्ग किया होगा तो आई मस्ट अप्रिशिएट कि इतना इजी क्वेश्चन कैसे रॉन्ग कर लेते हो. ठीक है, हमें भी बताइए. नेक्स्ट, आई विश आई कुड हेल्प यू. इट्स राइट. आई विश, आई ओट टू, आई शुड हेल्प यू. शुड क्यों आएगा, ऐसा थोड़ी होता है. मुझे मीन्स मैं ऐसा विश कर रही हूँ कि तुझे हेल्प ही करनी है. नो, दिस इज़ नॉट. ओके, मैं ऐसे विश कर रही हूँ कि शायद तू मुझे हेल्प कर सकता है. ठीक है, आई विश आई कुड हेल्प यू, नहीं शायद मैं तुम्हें हेल्प करूँ. ओके,
सो आई विश आई कुड हेल्प यू, राइट है आई विश आई ओट टू हेल्प यू नहीं है, आई विश आई डिड हेल्प यू, नो, आई विश आई मस्ट हेल्प यू, नो, मस्ट अगेन कंपल्शन ला रहा है तो नो, इट्स नॉट राइट. सो आई विश आई कुड हेल्प यू. सो आंसर वुड बी अल्फा. Clear? Any doubt? No? Chalo. Let's move to next question. The efforts of the security services have not been quite up to the incredibility, uptake, uptight, up to the mark. बस ये आंसर है तुम्हारा. आंसर इज डेल्टा. कह रहा है कि द एफर्ट्स ऑफ द सिक्योरिटी सर्विस हैव नॉट बीन क्वाइट अप टू, मतलब ये जो सिक्योरिटी सर्विस प्रोवाइड की वो इतनी अप टू द मार्क है नहीं. क्लियर? सो व्हेन दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन कम्स, आंख बंद करके सेंटेंस को थोड़ा लाउड रीड करके अगर आप कर दो तो इट इज़ राइट. ओके, अगेन यू शुड अंडरस्टैंड व्हाट द इंग्लिश इज, व्हाट इट इज़ ट्राइंग टू एक्सप्लेन, व्हाट इट इज़ ट्राइंग टू टेल यू. क्लियर? सो आंसर डी हो गया. अब बताइए 25 में से 25 किसके आए? अगर आ गए हो तो राइट कमेंट सेक्शन में आपका नाम लिखिए. नेक्स्ट लेक्चर आई विल बी अप्रिशिएटिंग फॉर दैट गर्ल और बॉय इन बिटवीन द लेक्चर. क्लियर? सो इफ़ यू आर देयर तो लिख दीजिए भाई. ठीक है, तो 25 क्वेश्चन जिसके राइट हो प्लीज़ डैम योर मैसेज इन दी कमेंट सेक्शन. क्लियर? तो ऐसे हमने कितने 25 क्वेश्चन कर लिए पूरे. नाउ दिस वुड बी 26 क्वेश्चन. क्वेश्चन गिवन बिलो आर सम ईडियम. चलो भाई ईडियम से पता चल गया. अब है हमारी बारी जो हमने ईडियम्स, आई हैव डन 600 ईडियम्स इन द क्लास. आई हैव टुक 600 ईडियम्स, बैठ के खुद लिए मैंने बच्चों के. ओके, तो गिवन बिलो आर सम ईडियम्स followed by 4 alternatives meanings to each. Select the response alpha, bravo, charlie or delta, which is the most appropriate meaning and mark your response on the answer sheet accordingly. A white lie, एक white lie. अब lie से भी पता चल जाएगा something that you are not telling और झूठ बोल रहे हो आप. An offensive way of describing something. Offensive way of describing something. मैं ये नहीं बनेगा. A white lie, to do something completely impossible, ऐसा भी नहीं है कुछ. To lie, a lie that is absolutely and universally true. तो white lie कैसे हो गया? झूठा है तो फिर झूठ ही है, no doubt. No, a white lie is a lie that you tell to avoid hurting someone. ठीक है, a white lie ऐसा होता है जो झूठ आप इसलिए बोलते हो कि आगे वाला पर्सन जो है दुखी ना उससे. ठीक है, सो आंसर वुड बी डेल्टा. नेक्स्ट, बैड ब्लड, फीलिंग ऑफ हेट्रेड बिटवीन पीपल. पहला ही ऑप्शन है बैड ब्लड क्या होता है? फीलिंग ऑफ हेट्रेड. हेट्रेड मतलब बोलते हैं ना जेलिसी टाइप, हेट्रेड जेलिसी, तो उसके अगेंस्ट रिलेटेड टू पीपल. ओके, बैड ब्लड. और सिचुएशन विच गोज फ्रॉम बैड टू वर्स, नो, ऐसा कुछ है नहीं. द फैटल एक्सीडेंट, नो. फैटल मतलब क्या होता है? डेडली. टू एक्सेप्ट द अनप्लीजिंग सिचुएशन, नो. सो आंसर वुड बी अल्फा. Answer would be alpha. Bad blood. ठीक है, next question. Count your blessings. Count your blessing. To start to understand how badly something has affected you. Count your blessings. ठीक है, ये ना ऐसे भी आपको blessing से पता चल जाएगा. It's very easy idiom. ये बहुत easy है, उसको कुछ पढ़ाने की है भी नहीं है. 4 ऑप्शन देख लो, आपको अपने आप समझ में आएगा क्या आंसर क्या है. ओके, count your blessing. To start to understand how badly something has affected you, an event which gradually becomes worse. Or Charlie के, to be grateful for good things in your life. Yes, count your blessing. Someone that you say in order to warn now someone. Warn का तो count blessing मतलब ऐसे थोड़ी 1 2 3 4, no, you can't do like this. ठीक है, तो काउंट योर ब्लेसिंग मतलब आप कुछ अच्छा, ब्लेसिंग से ही पता चल रहा है कुछ अच्छा है, पॉजिटिव है. समथिंग दैट यू से इन ऑर्डर टू वॉर्न हाउ, वॉर्न तो नहीं होगा. एन इवेंट विच ग्रेजुअली बिकम्स वर्स, नो. टू स्टार्ट टू अंडरस्टैंड हाउ बैडली समथिंग हैज अफेक्टेड मी. वाई बैड जैसा वर्ड तो आएगा ही नहीं ना, अपने आप एक ही ऑप्शन बचा, टू बी ग्रेटफुल टू थिंग्स इन योर लाइफ. ठीक है, तो आंसर इज चार्ली. सी दिस काइंड ऑफ ईडियम्स कि काउंट योर ब्लेसिंग, इस ईडियम में आपको अपने आप पता चल रहा है
कि तीन जो ऑप्शन है दे आर टॉकिंग अबाउट समथिंग नेगेटिव, राइट, और एक ही ऑप्शन बचा है विच इज चार्ली, समथिंग अबाउट पॉजिटिव एंड द ईडियम साउंड इटसेल्फ पॉजिटिव। क्लियर? तो एक ही आंसर बचेगा और वो दैट वुड बी चार्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, हैव द लास्ट लाफ। हैव द लास्ट लाफ मतलब एक ही बार में आखिर की हंस ली। ओके, सो हैव द लास्ट लाफ, to be the worst example of something, to succeed when others thought that you would not, to solve all the problems of life, to laugh at someone secretly। अब बताइए इसमें क्या होगा? have the last laugh, have the last laugh जब हम ऐसे कहते हैं तब याद रखना to succeed when other thought that you would not, ठीक है, have the last laugh, to be the worst example of something, no, this would not be the correct answer। have the last laugh का to solve all the problems of life, no, to laugh at someone secretly, ठीक है, किसी के ऊपर चुप चुप कर ऐसे हंसना है बोलते हैं, to laugh on someone secretly, तो ये भी नहीं होगा भाई आपका। ओके, तो बचा क्या आपका? ब्रावो, टू सक्सीड व्हेन अदर्स थॉट दैट यू वुड नॉट। और बस जब हम सक्सेसफुल हो जाते हैं ना, जब हम अनसक्सेसफुल, जब हम सक्सेस होता ही नहीं हमारी लाइफ में, एट दैट टाइम कैसे होता है, सब हंस रहे रहते हैं हमारे ऊपर, राइट। लेकिन जब एक बार तुम सक्सेसफुल हो जाओ तो सब ऐसे टेंशन में आ जाएगा, ये तो सक्सेसफुल हो गया, ऐसे हो गया, वैसे हो गया, तो तुम्हारी उनकी चुप्पी, उनका जो हंसी, वो दैट वुड बी द लास्ट लाफ, ठीक है। तो ऐसे याद रखना उसको, टू सक्सीड, ठीक है, हैव द लास्ट लाफ मीन्स टू सक्सीड व्हेन अदर थॉट दैट यू वुड नॉट। क्लियर? सो आंसर वुड बी ब्राउ। क्लियर? नेक्स्ट, सिट ऑन द फेंस। मैंने ये क्लास में शायद से मैंने 10 बार चिल्ला कर बताया होगा। इवन वेन एवर आई यूज टू स्पीक इन द क्लास आई यूज टू यूज दिस इडियम, सिट ऑन द फेंस, कि भाई तू डिसाइड कर ले तुझे मैथ्स करना है, इंग्लिश करना है, वेर यू हैव टू गिव मोर टाइम, प्लीज डिसाइड, सिट ऑन वन फेंस। की वैसे रिलेटेड, सिट ऑन द फेंस टू मेक समवन सडनली नोटिस यू, टू फेल कम्प्लीटली, टू डिले मेकिंग अ डिसीजन, टू बिहेव वेरी बैडली। इसी अपने आप मैं बता दिया था ना सेंटेंस में। टू सिट ऑन द फेंस का मतलब ये रहता है कि कहते हैं ना एक जगह पर रहता नहीं, मीन्स ना इधर रुकता है ना उधर रुकता है, जैसे कि दो पत्थर पे पैर देना। क्लियर? टू सिट ऑन द फेंस मीन्स वो बहुत कंफ्यूज होते हैं, उनको पता ही नहीं होता है कि हमें जाना का है, क्या है वैसे। टू सिट ऑन द फेंस मतलब दे आर कंफ्यूज्ड। क्लियर? सिट ऑन द फेंस टू डिले मेकिंग डिसीजन। सो आंसर इज चार्ली। आंसर वुड बी चार्ली। चार्ली का आंसर क्यों है बताओ? टू डिले मेकिंग अ डिसीजन, टू डिले मेकिंग अ डिसीजन। क्लियर? एनी डाउट? श्योर? तो टू डिले मेकिंग अ डिसीजन इज सिट ऑन दी फेंस। ये इडियम बहुत इंपॉर्टेंट है, आई थिंक यू शुड राइट इन योर नोटबुक। ओके, नेक्स्ट, नाउ दिस इज अगेन इम्पॉर्टेंट, PQRS। PQRS में होप सो इट वॉज नॉट दैट हार्ड। मैंने पेपर चेक किया, पेपर एक्चुअली इट वॉज ईजी। ओके, इफ़ यू अगर थोड़ा आया होगा तकलीफ तो आई थिंक दैट वुड बी इन वोकैबुलरी, अदरवाइज पेपर वॉज डैम ईजी। क्लियर? PQRS तो कुछ था ही नहीं, इट वॉज वेरी ईजी। ओके, तो देखते हैं PQRS क्या कहता है। ईच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स इन दिस सेक्शन कंसिस्ट ऑफ अ सेंटेंस the part of which have been jumbled. This part have been labeled PQRS given below. Each sentence have 4 sentence sequences, namely alpha, bravo, charlie and delta. You are required to rearrange the jumbled part of the sentence and mark your response accordingly. ठीक है? तो आपको यहाँ पर कैसे करना है? How you have to do this? Yes, आपको क्या है, पैर बनाने यहाँ पर। मैंने जब PYQ ली उस टाइम भी PYQ में मैं बहुत बार ये बता चुकी हूँ कि हाउ यू हैव टू सॉल्व दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस। कैसे सॉल्व करते हैं कि आपको 4 ऑप्शन दिए, P, Q, R एंड S। ओके, जब ये PQRS वाले जो टॉप बोलते हैं ना ऑप्शंस दिए, ये जम्बल्ड करके दिए हुए थे, राइट, दे आर नॉट प्रॉपर सेंटेंस। व्हाट यू हैव टू डू इज आपको PQRS या फिर जो ऑप्शन दिए होते हैं यहाँ पर, सी देयर आर 4 ऑप्शंस, राइट, 4 ऑप्शंस में से
जहाँ पर सेंटेंस आपका प्रॉपरली फ्रेम हो रहा है उस हिसाब से आपको ऑप्शन सिलेक्ट करना है और उस हिसाब से आपको यहाँ पर टिक करना है. क्लियर? दिस इज द वे यू सॉल्व द PQRS क्वेश्चन. क्लियर? दिस इज द वे यू सॉल्व द PQRS क्वेश्चन. एनी डाउट? होप सो इट्स नॉट. तो चलो करते हैं. बताइए फर्स्ट क्वेश्चन. Good quality elementary education confirming as a fundamental right of all children, the right to education and right to education act RTE mandates to the standard and norms specified in the act. ये पूरा जम्बल्ड है, राइट? इसका पी भी जम्बल्ड, मतलब कुछ ठिकाने पे ही नहीं है. तो यू हैव टू मेक अ पैर. पैर क्यों बनाती हूँ मैं? लेग का बात नहीं कर रही. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट लेग. पैर मतलब कि पी के बाद क्यू है या फिर क्यू के बाद आर तो पक्का होना है मैम. ठीक है, तो ऐसे आप पैर साइड में रखो और उस हिसाब से आपके आंसर निकल जाए. ओके. गुड क्वालिटी एलिमेंट्री एजुकेशन कन्फर्मिंग एज अ फंडामेंटल राइट ऑफ ऑल चिल्ड्रन, द राइट टू एजुकेशन एक्ट मैंडेट्स टू द स्टैंडर्ड एंड नॉर्म्स स्पेसिफाइड इन द एक्ट. क्लियर? अब चलो हम ऑप्शन से इतना तो पता चल रहा है. तो द राइट टू एजुकेशन एक्ट मैंडेट्स ये अपना स्टार्टिंग में हो सकता है. ठीक है, तो आर से स्टार्टिंग दो जगह दिख रही है, मतलब ए अल्फा और डेल्टा तो चला गया. अब इन दोनों में से आपको सिलेक्ट करना है कि कौन सा होगा. ठीक है, तो आर पहले ये देख लेते. चार्ली RQSP, द राइट टू एजुकेशन एज अ फंडामेंटल राइट ऑफ ऑल चिल्ड्रन टू द स्टैंडर्ड एंड नॉर्म स्पेसिफाइड इन द एक्ट. गुड क्वालिटी एलिमेंट्री एजुकेशन कन्फर्मिंग. नो, ये तो अपने आप चला गया भाई. मतलब कोई सेंटेंस का सेंस ही नहीं. ओके, ओके. सो यहाँ पर ये सेंटेंस जो चार्ली ऑप्शन है इसमें कुछ सेंटेंस का फ्रेम कुछ ग्रामेटिकली करेक्ट कुछ बता ही नहीं रहा है. तो भाई ब्राउ चेक कर लेते हैं एक बार, या फिर ब्राउ और चार्ली दोनों नहीं होते. यू हैव टू चेक बिटवीन अल्फा एंड डेल्टा, राइट? तो ब्राउ कह रहा है कि द राइट टू एजुकेशन RTE मैंडेट्स good quality elementary education conforming to the standards and norms specified in the act as a fundamental right of a children. Yes, this is right. तो इसका ऑप्शन कैसे होता है? RPSQ. ठीक है, मतलब ब्रावो इज राइट. आंसर इज ब्रावो. ओके. नेक्स्ट. The conflict and disputes in their mind, music not only relieves the burden but also, see not only but also दिख रहा है यहाँ पर. नॉट ओनली बट ऑल्सो दिख रहा है, मतलब कि नॉट ओनली relieves the conflict and disputes in their mind burden but also, okay fine, we'll read. The conflicts and disputes in their mind, music not only relieves the on children and the young. क्यू के बाद आर नहीं आने वाला है, मतलब आज क्यू के बाद ही आर आने वाला है कि म्यूजिक नॉट ओनली रिलीव्स द बर्डन. अच्छा, यहाँ ये जो बर्डन है ना, आई थिंक यहाँ पर प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई है. विल चेक वंस. क्वेश्चन तो ऐसा नहीं है. वही मैं सोचूं. गुड क्वालिटी एलिमेंट्री गुड कॉन्फ्लिक्ट्स, द कॉन्फ्लिक्ट्स एंड डिस्प्यूट इन देयर माइंड, म्यूजिक नॉट ओनली लीव्स द बर्डन. ओके, तो ये साथ में है, इसको अलग से, ये यहाँ पर नहीं है. ठीक है, नॉट ओनली रिलीव्स द बर्डन यहाँ पर है. ओके, यहाँ पर है बर्डन, ये यहाँ पर नहीं है. तो गाइस इसके साथ मत रीड करना. द कॉन्फ्लिक्ट्स एंड डिस्प्यूट इन देयर माइंड, म्यूजिक नॉट ओनली लीव्स द बर्डन ऑन चिल्ड्रन एंड द यंग बट ऑल्सो. मतलब क्यू के बाद एस पक्का है.
क्योंकि नॉट ओनली बट ऑल्सो दिख रहा है आपको, यहाँ पर नॉट ओनली है, यहाँ पर बट ऑल्सो है, मतलब क्यू के बाद तो क्यू के बाद सॉरी ठीक है, नॉट ओनली रिलीव्स द बर्डन ऑन चिल्ड्रन एंड द यंग बट ऑल्सो, मतलब कि क्यू के बाद आर और आर के बाद एस तो पक्का है, राइट। क्यू आर एस तो पक्का है, तो क्यू आर एस ढूंढो, क्यू आर एस यहाँ पर है, एस आर क्यू ये नहीं है, ये भी नहीं है, यू क्यू आर एस, ये दो जगह क्यू आर एस दिख रहा है आपको। तो नाउ यू हैव टू चेक कि जो पी ऑप्शन है ये पहले आएगा कि बाद में आएगा, नहीं तो फिर उसके हिसाब से हमारे ऑप्शंस डिसाइड हो जाएंगे कि विच वुड बी द आंसर। ओके, सो कहते हैं ना, फर्स्ट देखो तो क्यू से स्टार्ट, म्यूजिक नॉट ओनली रिलीव्स द बर्डन on children and the young but also alleviates the conflicts and disputes in their mind। अब ये तो लग ही रहा है मुझे, डेल्टा भी चेक कर लेते हैं। the conflicts and the dispute in their mind, music not only, no, पी ऑप्शन बाद में नहीं, बाद में ही आएगा, फर्स्ट इट विल नॉट कम, ठीक है। सो आंसर इज अल्फा। क्लियर, सो आंसर इज अल्फा। व्हाई इट इज अल्फा, क्योंकि हमने ऑप्शन निकाल दिए। सी समटाइम्स इट इज़ वी आर टॉकिंग अबाउट पेयर, समटाइम्स कैसे होता है ना कि दो लेटर्स का पेयर बन जाता है, मतलब दो जो ऑप्शंस है उसके पेयर बन जाते हैं, बट समटाइम्स आपको तीन का भी मिल जाएगा। अगर तीन का मिल रहा है तो शायद से वो आंसर तो पक्का है, वो ऑप्शंस तो पक्का है, वो जो हमने पेयर बनाया दैट इज़ कम्प्लीटली राइट बिकॉज इट इज़ देयर इन द ऑप्शन, राइट। तो फिर दो जो बचे हुए उसको एलिमिनेट कर दो, अब बाकी निकाल दो उसको, राइट। अब बाकी जो दो बचे आपको चेक करना है कि जो एक ऑप्शन वहाँ पर, जैसे यहाँ पर पी था, इन द सेम वे वेयर इट लाइज इन द बिगिनिंग और एट द एंड, आपको ये चेक करना है। वंस यू गेट दिस नाउ देन यू विल कम टू नो कि कहाँ पर कौन सा रहेगा। क्लियर, तो यहाँ पर हमें देख लिया कि पी आपका पीछे रहने वाला है, तो आंसर आपका क्या रहेगा, अल्फा। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, बट इट इज वर्चुअली कवर्ड बाय अ डोम शेप, एंटार्क्टिका इज अ कॉन्टिनेंट नियरली ट्वाइस एज लार्ज एज ऑस्ट्रेलिया। But it is virtually covered by a dome shape. Antarctica is a continent nearly twice as large as Australia. Ice sheet nearly 2 miles thick. बताइए क्या होगा इसका आंसर। बट इट इज़ वर्चुअली कवर्ड बाय अ डोम शेप अंटार्कटिका, ईजिली समझ में आ रहा है कि अंटार्कटिका से कुछ, तो अंटार्कटिका मेन नाउन तो यहाँ से क्यू से स्टार्ट होगा, ठीक है। तो दो ऑप्शन है, एस क्या है, आइस शीट नियरली 2 miles थिक, तो ये तो चले गए। अब बचे क्यू से जो स्टार्ट हो गया, अंटार्कटिका इज अ कॉन्टिनेंट, बट नहीं आएगा, मतलब क्यू के बाद पी नहीं आने वाला है। क्यू के बाद पी है नहीं है, ठीक है, मतलब वो तो पैर बन ही नहीं रहा है। ओके, सो नेक्स्ट क्या बाकी है, ठीक है, अंटार्कटिका इज अ कॉन्टिनेंट। ओके, पहले अल्फा चेक करेंगे, फिर चार्ली चेक करेंगे, ये तो वैसे भी चलेगा। ओके, नाउ फर्स्ट ऑप्शन दिख रहा है, अंटार्कटिका इज अ कॉन्टिनेंट नियरली ट्वाइस एज लार्ज एज ऑस्ट्रेलिया, but it is virtually covered by a dome shape ice sheet nearly 2 miles thick. Yes, it sounds right. ये लग रहा है कि Q के बाद R तो पक्का होने वाला है, क्योंकि R matches over there, ठीक है। अंटार्कटिका is a continent nearly twice as large as Australia. So Q के बाद R तो क्लियर है कि हो गई, तो Q के बाद R हमें दिख रहा है अल्फा में, आंसर वुड बी अल्फा। ओके, आंसर इज अल्फा। एनी डाउट? श्योर, हम एक बार चार्ली भी चेक कर लेते हैं। चार्ली ऐसे कह रहा है कि अंटार्कटिका इज अ कॉन्टिनेंट, आइस शीट नियरली 2 miles थिक। नो, ऑफकोर्स ग्रामेटिकल ही बैठ ही नहीं रहा है, ग्रामेटिकल बैठ रहा है क्या, नहीं बैठ रहा है मैम। चलो फिर आंसर आपका क्या है यहाँ पर, आंसर इज अल्फा। क्लियर क्रिस्टल? ओके, नाउ 34th क्वेश्चन, द ग्लोबल इकोनॉमिक वेट फ्रॉम the advised economies that there was a major shift in and central bank governor in, मतलब आर से स्टार्ट नहीं होना है क्योंकि एंड है, एंड स्टार्टिंग में, मतलब आर से तो होना नहीं है ये,
आर से ऑप्शन में भी नहीं है, चलो ठीक है। एंड सेंट्रल बैंक गवर्नर इन रिकॉग्निशन ऑफ द फैक्ट दैट, मतलब आर के बाद क्यू हो सकता है, नहीं क्यू के बाद आर, ओके। रिकॉग्नाइजेशन ऑफ द फैक्ट द G20 was formed in 1990 as a forum of finance minister, okay. The global economic weight from the advanced economies that there was a major shift in and central bank governor in recognition of the fact the G20 was formed in 1999 as a forum of finance minister, okay. अब इतना तो पता चल रहा है कि ये एस से नहीं स्टार्ट होगा। द G20 वॉज फॉर्म इन 1999 एज अ फोरम ऑफ फाइनेंस मिनिस्टर। अरे एस से ही तो स्टार्ट हो रहा है ये, ऑफ कोर्स इट स्टार्ट्स फ्रॉम एस, ठीक है, मतलब एस से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, विल चेक। द ग्लोबल इकोनॉमिक वेट फ्रॉम द एडवांस इकोनॉमीज दैट देयर वॉज अ मेजर शिफ्ट इन एंड सेंट्रल बैंक, ठीक है, ओके। तो एस से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। फिर आर क्या है आपका, आंसर इज डेल्टा। अब कैसे मैम आपने इतना तुरंत कैसे बता लिया आंसर? अरे भाई देख लो ना, द G20 वॉज फॉर्म इन 1999 एज अ फोरम ऑफ फाइनेंस मिनिस्टर एंड सेंट्रल बैंक गवर्नर इन रिकग्निशन ऑफ द फैक्ट दैट देयर वॉज अ मेजर। फैक्ट के बाद ऑफ कोर्स देयर वुड बी द वर्ड यूज दैट, ये अपने आप क्लिक हो रहा है, तो बस दैट के बाद आप फैक्ट के बाद दैट, ठीक है, विच वुड बी क्यू। मतलब इतना पता चल रहा है कि आर के बाद आपका क्या होगा, क्यू होगा। आर के बाद क्यू तो मुझे बस यहीं पर दिख रहा था, राइट, यहाँ पर क्यू आ रहा है, यहाँ पर क्यू आ रहा है, यहाँ पर क्यू आ रहा है। ये तीनों वर्ड से इतना पता चल रहा है कि अल्फा, बीटा और चार्ली इज नॉट द आंसर। क्लियर? सो आंसर वुड बी डेल्टा। क्लियर? एनी डाउट? श्योर? गुड। क्लियर? सो आंसर वुड बी डेल्टा। अब मैंने ये कैसे बताया, आपको पता चल गया? मुझे इतना पता चल गया, सी इवन व्हेन आई वाज रीडिंग द सेंटेंस एट दैट टाइम आई केम टू नो कि फैक्ट के बाद दैट होना चाहिए, लेकिन मैंने तुरंत घुमा दिया ताकि आपको पता ना चले कि व्हाट वुड बी द रियल आंसर। और इतना पता चल रहा है कि क्यू के बाद आर तो नहीं होगा, तो तीनों ऑप्शन में क्यू के बाद आ रहे, तो इजीली आप इसको एलिमिनेट कर सकते थे कि बस 3 चले गए, 1 बचा, वो आपका आंसर है। क्लियर? सो आंसर वुड बी डेल्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन। Aquaculture nation in the world and India's products are exported to many nations, fish producing and the second largest, India is the third largest। अच्छा, मतलब कि ओके, या तो Q से स्टार्ट होगा या तो S से स्टार्ट होगा, राइट, या तो Q से स्टार्ट होना है या फिर S से स्टार्ट होना है। नाउ R से क्या है, फिश प्रोड्यूसिंग एंड द सेकेंड लार्जेस्ट, मतलब ये तो चला गया। पी क्या, एक्वाकल्चर नेशन इन द वर्ल्ड, एक्वाकल्चर नेशन इन द वर्ल्ड एंड, नहीं, दिस वोंट मेक सेंस, राइट। सो डेल्टा, चार्ली और डेल्टा तो चला गया, बाकी क्या है, अल्फा एंड ब्राउ। अल्फा क्या कह रहा है, इंडिया इज द थर्ड लार्जेस्ट फिश प्रोड्यूसिंग एंड द सेकेंड लार्जेस्ट एक्वाकल्चर नेशन इन द वर्ल्ड एंड इंडियाज प्रोडक्ट आर एक्सपोर्टेड टू मेनी नेशन। मुझे तो कुछ गलती है नहीं, लग ही नहीं रही है। एक बार डेल्टा भी चेक कर लेते हैं, डेल्टा क्या क्या है, नहीं डेल्टा नहीं, ब्राउ चेक करते हैं। इंडियाज प्रोडक्ट्स आर एक्सपोर्टेड टू मेनी नेशन, एक्वाकल्चर नेशंस इन द वर्ल्ड, नो, बिल्कुल सेंस नहीं बना रहा है। ब्राउ ग्रामेटिकल मिस्टेक्स दे रहा है, इसकी वजह से अल्फा आपका आंसर है। ओके, सो आंसर इज अल्फा। Clear? Okay, we have completed with 35 questions. Guys, tell me how many questions out of 35 are right? अगर आपके 30, 31, 32, 34 भी right है तो proud of you। 35 जिसके right है सारे के सारे, very good। आपके मार्क्स आप कमेंट सेशन में डाल देना। 28, 29 जितने भी है कुछ नहीं, it's fine। बोल देना कि अगर पेपर हार्ड है तो कट ऑफ वैसे ही जाएगा, कम जाएगा। पेपर इजी है तो भाई कट ऑफ वैसे ही जाएगा। तो अपना पहले ही मन बना लेना, अपने
आंसर्स के ऊपर 35 में से अब बचे कितने, ओनली 15 क्वेश्चंस आर लेफ्ट, आउट ऑफ दैट वी हैव डन विद 35 क्वेश्चंस आउट ऑफ 50. तो 35 से इतना तो पता चल गया होगा कि वेर यू लाई, राइट. इफ द पेपर वॉज ईजी, so of course cutoff would be that high. If it is bit hard, then cutoff would be bit low, right? So it's completely depend upon this chart that कि भाई easy है तो पेपर का cutoff high जाएगा, hard है तो पेपर का cutoff कम जाएगा. Clear? तो 35 क्वेश्चन में से how many marks you have scored? If you have scored 25, 26, 20, anything it would be, please write down in the comment section. Okay? तो आपको इतने से तो पता चल जाएगा. एंड इफ़ एवरीवन इज शेयरिंग देयर मार्क्स तो इतना पता चल जाएगा कि कमेंट सेक्शन से ही कि आपको कहते हैं ना कि इफ़ योर मार्क्स इज सम अराउंड द पीपल हु आर मैसेजिंग इन द कमेंट सेक्शन उतना ही नीचे ऊपर है तो हो सकता है कि तुम्हारा बैठ जाए मेरिट लिस्ट में, ठीक है. लेकिन बहुत कम बता रहा है तो अपने आप समझ जाना एंड डोंट लूज द होप, ठीक है. देयर आर मेनी चांसेस मैन. यू हैव CDS वन मोर टाइम. इफ you have other till 24 you can give the exam, 25 you can give the exam for this paper, you can give the test for this exam. okay, so don't worry. चलते आगे. हमने 35 क्वेश्चंस कर लिए. आउट ऑफ 35 how many are right or how many are wrong, please make sure you write in the comment section. okay, थर्टी सिक्स क्वेश्चन. अच्छा, दिस इज पार्ट्स ऑफ स्पीच. अब पार्ट्स ऑफ स्पीच पहले तो मैं बताऊँ होते 8 है विच आर वेरी इंपॉर्टेंट. एक डिटर्मिनल्स पकड़ लो, 9 पकड़ लो. नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, कंजंक्शन, प्रेपोजिशन, इंटरजेक्शन, इंट्रोगेशन और एक 9th बचा आपका डिटर्मिनल्स. अब अगर मैं कहूँ इफ़ आई वॉन्ट टू एक्सपेल ईच ऑफ देम फॉर यू आई विल डू. नाउन तो आपको पता है नाम रहता है, राइट. नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस, थिंग, दैट इज़ योर नाउन. व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट प्रोनाउन, अब प्रोनाउन होता क्या है, जो हम हिंदी में सर्वनाम कहते हैं, दैट इज़ योर प्रोनाउन, राइट. इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट प्रोनाउन, इट इज़ द वर्ड विच टेक्स प्लेस ऑफ नाउन, उसे कहते हैं हम प्रोनाउन. क्लियर. द वर्ड विच टेक्स प्लेस ऑफ नाउन उसे हम कहते हैं प्रोनाउन. द थर्ड इज वॉट, वर्ब. वर्ब कहते हैं, वर्ब इज समथिंग विच गिव्स मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट नाउन. ठीक, नाउन वर्ब आपका मेन एक्शन होता है, ठीक है. मेन एक्शन ऑफ द सेंटेंस इज वर्ब, ठीक है. जैसे शी सिंग सॉन्ग, सिंग क्या है, सिंग आपका एक्शन है, मेन एक्शन है आपके सेंटेंस का, तो वो आपका क्या हो गया, वर्ब. क्लियर. सो नाउन, प्रोनाउन और वर्ब क्लियर है, 3 हो गए. फोर्थ करते विच इज एडवर्ब. एडवर्ब मोस्ट प्रोबेबली, नॉट कंप्लीटली एंड्स विद ly, मोस्ट प्रोबेबली वो ly से कंप्लीट होता है, ठीक है. सो दैट इज योर एडवर्ब. और एडवर्ब अगेन द डेफिनेशन ऑफ एडवर्ब कि वो ना वर्ब के रिलेटेड ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देता है. विच गिव द वर्ड विच गिव्स मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट वर्ब इज नोन एज एडवर्ब. उसका स्पेलिंग भी देखो ना, ADVERB है, राइट. ADD एड मतलब एडिशन, AD एड, एडवर्ब, एडिंग समथिंग टू वर्ब, दैट इज एडवर्ब. क्लियर. अब 4 हो गए. अब 5th क्या है, एडजेक्टिव. नाउ व्हाट इज एडजेक्टिव. एडजेक्टिव मतलब क्या होता है, विशेषण. मतलब द वर्ड विच गिव्स मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट नाउन एंड प्रोनाउन. नाउन और प्रोनाउन के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, दैट इज योर कमान एडजेक्टिव. क्लियर. उसे क्या कहेंगे हम, एडजेक्टिव कहेंगे. द वर्ड विच गिव्स मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट नाउन एंड प्रोनाउन इज नोन एज एडजेक्टिव. मैंने ये क्लास में ली है. व्हेनेवर आई स्टार्ट माई लेक्चर आई यूजुअली स्टार्ट विद द बेसिक्स, क्योंकि CDS बेसिक पूछ ले और आप हाई करके बैठे हो, बेसिक कुछ पता नहीं, कंफ्यूज हो, बस फिर हो गया, वेल गुड, वेल एंड एकदम नाइस. ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है. आई स्टार्ट इट फ्रॉम बेसिक इटसेल्फ. ओके. तो एडजेक्टिव क्लियर है, 5 क्लियर है. नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव. नाउ 6th टाइप इज कंजंक्शन. व्हाट डू यू मीन बाय कंजंक्शन. कंजंक्शन वो वर्ड रहता है, सी आई थिंक इसमें नहीं, CDS के पेपर में कंजंक्शन पूछा है, थोड़ा कंफ्यूज करके पूछा है, तब मज़ा आएगा जब कंफ्यूजन वाले वर्ड्स. 120 क्वेश्चंस विल बी डूइंग इन 2024 टू CDS पेपर, CDS 2 पेपर 2, ठीक है. अब कंजंक्शन क्या होता है, कंजंक्शन वो वर्ड, कंजंक्शन होता है द वर्ड विच जॉइन 2 सेंटेंसेस, ठीक है. कंजंक्शन क्या होता है, द वर्ड विच जॉइन 2 सेंटेंसेस, दैट इज नोन एज कंजंक्शन. क्लियर. अब कितने हुए, 6 हो गए. 7वां बोल दो प्रेपोजिशन. प्रेपोजिशन होते क्या, प्रेपोजिशन वो होते हैं जो आपको अपनी पोजीशन आपको नहीं,
The word which gives more information or which tells the position in the sentence is known as preposition. Okay, हो गए साथ। आठवां आपका वही इंटरजेक्शन और इंटरोगेशन। इंटरजेक्शन होता है, इंटरजेक्शन मीन्स विच एक्सप्रेस सडन फीलिंग और इमोशन, जैसे बोलते हैं ना हुर्रे हुर्रा, या फिर ओ माई गॉड अल्लाह शी लॉस्ट, ऐसे। तो ये जो होते हैं जहाँ पर सडन एक्सप्रेशन और फीलिंग्स आती है आपकी, वो रहता है आपका इंटरजेक्शन। पूरे मैंने 8 पार्ट बता दिए आपको ऐसे ही 2 मिनट में। नाउ लेट्स सी हाउ टू सॉल्व। अब इसमें गलती करो तुम, मैं तो सोचूं इतना इजी, गलती कैसे कर रहे हो। Adders are the only poisonous snake found across Britain. Okay, adders। अब पूछा क्या ये, अब सीधा सीधा बता रहा है कि कोई नाम है, राइट। एडर्स आर द ओनली पॉइजनस स्नेक, कौन से स्नेक, एडर्स। तो बता तो रहा है भाई कौन से पॉइजनस स्नेक है, कौन से वो एडर्स होते, तो ये अपने आप नाउन हो गया। नाउन, आंसर इज अल्फा। Clear? Next, she spoke to him once since he has been in town. She spoke to him once since he has been in town. बताइए क्या रहेगा इसका आंसर। Be hydrated, guys. She spoke to him once since he has been in town. अब मैंने कहा था कि अच्छा एडजेक्टिव हो सकता है, एडजेक्टिव तो नहीं होगा, एडवर्ब भी नहीं होगा, नहीं, प्रेपोजिशन भी नहीं, प्रेपोजिशन तो जगह बताता है, सिंस का जगह बता रहा है, नहीं, एक ही बाकी अपना कंजंक्शन। नाउ हाउ इट इज कंजंक्शन आई विल टेल यू। शी स्पोक टू हिम, शी स्पोक टू हिम वंस, ये आपका एक सेंटेंस हो गया। ही हैज़ बीन इन टाउन, दिस इज योर सेकेंड क्वेश्चन, दिस इज योर सेकेंड सेंटेंस, राइट। ये एक सेंटेंस है और ये एक सेंटेंस है, तो बस ये आपका क्या है, कंजंक्शन। Clear? This is your conjunction. I don't really want to go. Besides, it's too late now. Besides, it's too late now. अब too late, it's too late. अब ये क्या बता रहा है आपको, एक्शन बता रहा है, राइट, मतलब वर्ब बता रहा है, वर्ब के ऊपर ज़्यादा इंफॉर्मेशन दे रहा है, मतलब ये एडवर्ब हो गया, राइट। सो आई डोंट रियली वॉन्ट टू गो, बिसाइड्स इट्स टू लेट नाउ, तो नाउ आपका क्या बता रहा है, एडवर्ब बता रहा है। सो आंसर इज ब्राउ। ओके, नेक्स्ट, लुक एट दैट, दिस दैट दोज देयर, मैं चिल्ला चिल्ला के मुंह फाड़ फाड़ कर कह रही थी कि ये सारी डिटर्मिनर्स होते हैं, बस दैट को देखना और डिटर्मिनेंट्स ऑप्शन देखना, इससे अच्छा और क्या होता है, बोलते हैं ना सोने पे सुहागा। दैट देख लिया, फिर ऑप्शन देख लिया, है ये तो आंसर वही है, डिटर्मिनर्स ही हो सकता है। लुक एट दैट मैन ओवर देयर, एडवर्ब नॉट एट ऑल, कंजंक्शन नहीं, डिटर्मिनर्स, ठीक है, आंसर इज चार्ली। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्लेन इज रेडी फॉर टेक ऑफ। अब ये थोड़ा ट्रिकी था बच्चों के लिए, मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स आस्क मी मैम इसका आंसर क्या होगा, मुझे तो लग रहा था नाउन होगा, कंजंक्शन होगा, वर्ब होगा, जेरेंड होगा। जेरेंड तो नहीं होगा, जेरेंड तो अपने आप चला गया क्योंकि आईएनजी फॉर्म में होता है, राइट, नहीं। सी टेक ऑफ इज अगेन फ्रेज है ये, ठीक है। एक तो टेक ऑफ आपको पता है जो प्लेन करती है, प्लेन टेक ऑफ करती है ना, प्लेन, और एक टेक ऑफ होता है जो व्हेन यू टेक ऑफ योर क्लोथ, जब आप कपड़े उतारते हो उसको कहते हैं टेक ऑफ, क्लोथ्स का रिलेटेड रहता है। ये तो फ्रेज है, ठीक है, ये कंजंक्शन तो नहीं होगा। द प्लेन इज रेडी फॉर टेक ऑफ, अगर ये इज के बाद या फिर वर्ब के बाद होता तो ये एडवर्ब, सॉरी ये वर्ब तो हो भी नहीं सकता, अगर एडवर्ब होता तो भी ठीक है, तीनों ऑप्शन जा रहे तो ये नाउन, ठीक है। सो टेक ऑफ इज नाउन, आंसर इज A. Clear? This is how we have completed with 40 questions. We have completed all 40 questions. बस 10 बाकी है। मुझे बताना 40 में से कितने जनों ने कितने राइट किए, ठीक है। अगर आप 30-35 के बीच में हो तो फिर भाई अच्छे हुए, ठीक है। लेट्स मूव फॉरवर्ड, बस बाकी 10 कर ले फिर हो गया।
अगेन नाउ दिस इज एन कॉम्प्रिहेंशन. अब कॉम्प्रिहेंशन है ये, राइट. इफ दिस इज समथिंग व्हाट यू फील ट्रिकी, तो ये ट्रिकी नहीं था, इट वॉज डैम ईजी. ठीक है, मैं पूरा पैसेज रीड तो नहीं करूँगी. व्हाट आई विल डू इज़ आई विल स्टार्ट इमीडिएटली, आई विल गिव यू द आंसर्स. आप चेक करना कि आंसर्स आपने क्या किया और आंसर्स होने क्या. क्लियर. इफ़ इट इज़ राइट टेक मार्क्स, इफ इट इज़ रॉन्ग बस आपको पता ही होगा. ओ आई विल नॉट से बिकॉज इट विल हर्ट. Clear. So I will not read this passage immediately, I will tell the answers. Clear. What according to the passage is the unwelcome form of the globalization. अब इसका ऑप्शन ग्लोबलाइजेशन ऑफ द डिसीज, बस यही है. इल्यूसिव गोल ऑफ ग्लोबलाइजेशन नहीं था, हिस्ट्री नहीं थी, सिलेक्टिव यूज ये तो था भी नहीं. ठीक है, ठीक है. तो आंसर वुड बी अल्फा. ओके. नेक्स्ट. According to the passage, globalization of health has become imperative due to public health intervention. The globalization यही है तो अल्फा ही है इसका आंसर भी. ठीक है, इसका आंसर भी अल्फा है. नेक्स्ट क्वेश्चन. According to the passage, resurgent diseases are affected by. अब कौन से डिसीज, अब कौन से इससे अफेक्ट होगी, मेडिकल प्रैक्टिसेस से. हाँ ये भी है. ओवर यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स, हाँ ये भी, राइट. फिर क्या कह रहा है, इमरजेंसीज ऑफ न्यू स्ट्रेन, हाँ इससे भी. मतलब ये तीनों है, ये ऑप्शन 1 2 ये तीनों का ऑप्शन है. सो आंसर वुड बी डेल्टा. क्लियर. नेक्स्ट. अकॉर्डिंग टू द पैसेज मेनी न्यू डिसीज आर एमर्जिंग ड्यू टू चेंज इन लैंड यूज बिकॉज ह्यूमन्स आर कमिंग इन कॉन्टैक्ट विद अनफेमिलियर. हाँ ये कोविड के रिलेटेड था, ये थोड़ा पैंडमिक के रिलेटेड दिया था उन्होंने. अर्बनाइजेशन मेक्स पैथोजेंस पॉलीफ्रेट, ये भी नहीं होगा. ह्यूमन्स बिकम एडेप्टिव एंड पास ऑन देयर जीन्स टू रिलेटेड बैक्टीरिया बाय वे ऑफ प्लाज्मिड ट्रांसफॉर्म, ये भी नहीं था. ह्यूमन्स आर इनएडवर्टेंटली रिलीजिंग न्यू वायरसेस, नो ये भी नहीं. अल्फा इज आवर आंसर. Answer is alpha. Okay. Next. What is the meaning of the word epidemiology in the passage? अब epidemiology मतलब होता है scientific study of spread and control of disease. Study of the spread and control of disease. तो आंसर है आपका ब्राउ. आंसर इज ब्राउ. क्लियर. चेक अपने 45 में से कितने हैं, वो जो पैसेज में से अगर आप 5 में से 4 भी ला रहे हो तो गुड, 5 आउट ऑफ 5 भी ला रहे हो, एक्सीलेंट. ओके, बताना अभी. नेक्स्ट. each item in this section consists of a sentence with an underlined word following of 4 words. Select the opinion that is nearest in meaning. मतलब nearest in meaning मतलब ये पूछ रहा है synonym, मतलब similar. Okay, similar, most probable. Sages sincere have cautioned that the path towards enlightenment is full of illusory traps. अब caution मतलब precaution कहते हैं ना, caution वैसा. ठीक है, इसका आंसर है warn. Now this is what synonyms. तो आंसर इसका है 4D. मतलब जो ऑप्शन रहेगा उसका मतलब ही ऑप्शंस में रहेगा. क्लियर. उसका जो वर्ड रहेगा आपके सेंटेंस में, दैट वुड बी द आंसर व्हाट इज देयर इन योर ऑप्शन. नेक्स्ट. द ऑफिसर रिपोर्टेड द डिटेल्स ऑफ द मिशन इन अ मोनोटोनस मैनर. अब मोनोटोनस मैनर बोल रहा है मतलब डल मैनर में. आंसर इज अल्फा. क्लियर. आंसर इज अल्फा. नेक्स्ट. There are many elusive questions in philosophy. Sorry. There are many elusive questions in philosophy. Elusive मतलब ऐसे तो बोलते हैं ना ट्रस्टेड करने वाले, तो baffling. ठीक है, so answer is B. Okay. Next. Cleaning this mess is a mammoth task. Mammoth मतलब बहुत बड़ा टास्क है. ठीक है, cleaning this mess is mammoth. अब mammoth तो बहुत बड़ा टास्क है.
ठीक है, तो दैट इज ह्यूज टास्क. आंसर इज अल्फा. आंसर इज अल्फा. क्लियर? एनी डाउट? नो. नेक्स्ट. The police department's image was tarnished after the high profile murder case. अब tarnish मतलब क्या होता है? The police department's image was tarnished after high profile case. जब हम कहते हैं इसके बारे में, ऑप्शन देखो, एक तो एनहांस है, एनहांस से तो नहीं होगी. इवन आफ्टर रीडिंग द सेंटेंस आपको एक आइडिया लग जाएगा कि उसका मतलब है क्या. राइट? चलो बताइए. इट्स अ लास्ट क्वेश्चन, राइट? बस उसके बाद तो हो ही गया. वी हैव डन विद ऑल द क्वेश्चंस. यस, वी हैव डन. ओके, सारे 50 क्वेश्चन हो गए. द पुलिस डिपार्टमेंट्स इमेज वॉज टार्निश आफ्टर द हाई प्रोफाइल मर्डर केस. ओके, टेल मी व्हाट इज द आंसर. द पुलिस डिपार्टमेंट्स इमेज वॉज टार्निश आफ्टर द हाई प्रोफाइल केस. अब एक तो अच्छी हो सकती थी, एक तो बुरी हो सकती थी. तो टार्निश का मतलब होता है स्पॉइल. ठीक है, स्पॉइल. और ये ब्राउ में है, तो आंसर इज बी. एनी डाउट? नो. क्लियर. सो आउट ऑफ 50, हाउ मेनी क्वेश्चंस यू हैव डन एंड हाउ मेनी क्वेश्चंस आर राइट? इट्स फाइन इफ यू आर गेटिंग 30, 35, लेकिन स्कोर काउंट कर लेना. क्लियर? इफ दिस इज द score, then congratulations, you have scored very nice marks. Clear? So hope you have got what are correct, how many questions are correct, how many questions are wrong. ठीक है, उस हिसाब से आपके मार्क्स साइड में कर देना एंड कमेंट सेशन में लिख देना, सो दैट यू विल कम टू नो. आप सारे लिखना जो भी वीडियो देख रहे हैं, क्योंकि अगर वंस इफ यू आर डन विद दिस 50 क्वेश्चंस, आप अगर 50 सॉल्व करके आ गया, एक राइट है, इफ 1 क्वेश्चन इज राइट यू विल बी गेटिंग 4. ठीक है, 1 रॉन्ग, देन यू नो 1.33 माइनस करना है. ठीक है, सो अकॉर्डिंगली व्हाट यू डू इज काउंट इट एंड नोट डाउन और कमेंट डाउन योर मार्क्स इन द कमेंट सेशन. ओके, एंड इसी तरह विल एंड दिस वीडियो. इन फर्दर वीडियो विल बी डूइंग द सीडीएस 2024 पेपर 2, वो उसका सॉल्विंग देख लेंगे. ओके, till the time, stay tuned and Jai Hind. Thank you.